आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये क्यू के ऊपर है। पिछला जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो स्टैक के ऊपर था। स्टैक बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि लीफो स्ट्रक्चर है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि क्यू जो है वो फीफो स्ट्रक्चर है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और अगर इसमें हम बात करते हैं तो देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाड़ियों का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया हुआ है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। और बेसिकली अगर हम स्टैक की सॉरी क्यू, अगर क्यू की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो क्यू कहता है बेसिकली कि क्यू एक ऐसा होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। याद रखिएगा, क्यू इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच the elements are insert at one end and remove from another end. This is called a queue. The end that is used for the insertion of data is called uh, rear end, and the end that is used to remove from the element the end that is used to remove the value from the queue is known as front end. दो end होते हैं जी. The first one is the rear and the second one is front end. Rear end is used to insert the value into the queue and the front end is used to remove the value from the queue. जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि जैसे सिनेमा में टिकट लेने के लिए, जैसे कि पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि आपके पास सिनेमा में जो लोग खड़े हैं उनको अगर वो पिक्चर लेते हैं टिकट के लिए तो एक कतार बनती है। इसी तरह फीस सबमिट करवाने के लिए जैसे आप एक क्यू में लगते हैं, तो क्यू का कॉन्सेप्ट ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में। होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और सेकंड वन, ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। आगे मूव करते हैं। The queues are linear data structure in which we add the elements from one and remove from. You can see that the insert at this end is called the rear end and the removing from the element in the queue is known as the front end. इसके भी तीन primitive operation है. The first one is insert the value into the queue is called enqueue, ये लिखा भी हुआ है. And the second operation है to remove the value from the queue. This is called the dequeue, and the third one is empty. So what will be the basic operation? Let's see. So you can see that if there is a no element, like if there is no element, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे example के तौर पे आपको बताना चाहूँ, if there is no element in the queue, then always must be remember what will be the value, what will be the indexes of the rear and the front. अब एक चीज याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, लिसन के सेम एज इट इज एज अ टॉप, यू कैन सी कि the values are inserted by the rear end, so we must be locate the rear with -1. Why? क्योंकि rear पर insertion होती है. And what about the front end? Whether we can define the both as -1? नहीं, हम front को 1 पर रख देंगे. It means it shows that there is no value, and if we insert a value then the first value is removed from the this end, and this end is according to raise element of 0 index. कुछ इस फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूं. ठीक है जी. So when we insert the value then the both ends are equals at first index, then rears become up and up and up if we insert the value into the queue. जैसे ही रिमूव करते हैं, you can see the front upward and it remove the value A from the queue and then increased at level second level, that is B. इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली हम बच्चों बात करते हैं. सो दिस इज द जावा कोड. मैं इसको बाद में C++ के कोड में कन्वर्ट कर दूंगा. तो बात करते हैं डायरेक्टली, चीज़ों को दाएं बाएं करने के बजाय डायरेक्टली हम अपनी अप्रोच की तरफ चलते हैं. वी हैव अ साइज, सो वी डिफाइन अ स्टैक के बजाय क्यू, क्यू यू ई क्यू. स्मॉल में देखें C++ की अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरी है. देयर इज एंड, देयर इज अ टॉप. नो, इट्स नॉट अ टॉप, दिस इज front and a rear. So there are two variables. The two variables that means that are defined in a class, these are the data member of the class, the front and the rear. In a stack, you can see we have to define front with 0 and a rear with
रेयर विद -1। अगर हम जावा का कोड भी देखें तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इफ यू कैन सी इन जावा कोड द फ्रंट इज 0 एंड द रेयर इज -1। सो अगेन गो इनटू द our code block ji. So this is insert function. Insert, we want to insert the value into the queue, not stack. So same function है, इसीलिए इसमें कोई ऐसी मैं बड़ी कोई rocket science नहीं हम बना रहे। So if we want to insert in the value, then you must have to check the rear, because the rear is used to insert the value, and same as it is the rear, increase the rear first and then this one. And what about the empty? The empty mean front. If front is equal to like, याद रखिएगा empty का कॉन्सेप्ट कहता है। अब यहां पर empty का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। कैसे, मैं इसके लिए थोड़ा सा ड्राई रन करना चाहूंगा, देन यू कैन सी, और फिर मैं इसी का पहला जो ड्रॉबैक है वो भी मैं साथ ही शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सर बात क्या कर रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए ताकि एक ही तीर से मैं दो शिकार कर सकूं। ओके, सो यू कैन सी दिस इज योर क्यू, लाइक this is your queue, and in this queue we are defining the R, like R, and the R have 0, then 1 and 2 and 3 till 2. So the size is clear cut, the size is 7, and you have already known that the rear is there and the front is there. First one, if you want to insert the value into the queue, then you must have to check whether the queue is full or not. No, it's not equal to this one, so it increased by 1 and then insert the value, like there is 13। ऐसी random value डाल रहा हूं, आप बात को पिक कर लीजिएगा। Then same as it is, it insert the till values like 57 minus this one 45 11 and like 65. Okay, if you can see the rear is there and the front is there, so whether the queue is empty or not, no it's not empty। तो पहले कोड को देख लेते हैं ताकि बाद में हम इसके बारे में बात करें। एम्प्टी का चेक के बजाय हम पहले रिमूव के चेक को देखें। रिमूव, so this is insert and this is remove। remove mean dq, so you have to check the empty। हम empty को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बाद में बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा this one, क्यों लिखा वो बाद में बात करेंगे। then we can say that the queue is empty under flow and this is front front and not decreased by 1, it increased by 1 in the postfix notation, and there is no queue top। अब किया क्या कि हम पहले वैल्यू को रिमूव करेंगे, एम्प्टी का चेक अभी बात करनी है जी। वैल्यू को रिमूव करेंगे और देन वी इंक्रीज द फ्रंट बाय 1। सो अगेन, so we remove this one and increase by 1, remove this one, increase by 1, remove this one, increase by 1, now remove the 45, increase by 1, remove this one and increase by 1, and whether the queue is empty or not, no, remove this one and increase by 1। if you can see, if we remove these values from the queue, so tell me any one of you whether the queue is empty or not। empty empty, but for example like the size is 6, if the size is 6, then according to the previous check that is that was applied in stack, so it says that it's empty, but you can see that empty mean true, but you can see that the कि ये खाली है या like full है, but you can see that it is not empty or not, this is empty but not a full। you can see, तो एक ही तीर से मैं चाहता था दो शिकार कर सकूं कि empty तो है but full नहीं है, तो इस पे भी बात हमने करनी है। सो हम कैसे लगाएंगे कि whether the queue is empty or not? The best approach is check whether the front is greater than
and equal greater than rear or not. If the front is greater than rear, you can also check in the constructor. If front is greater than rear, then this is no doubt in this question the queue is empty. Same as it is in this scenario, if we increase the rear and front one by one, so you can see, isko puch lo, you can see the queue is empty. So the simple is that front is 0 and the rear is -1. So if the front is greater than rear, then it means it is empty and it return true, otherwise it return false. इसीलिए भाई मैंने इसको front is greater than rear रखा rather than greater than and equal to size -1. क्यों? अभी उसकी भी आगे भी further तस्दीक हो जाएगी. अच्छा, अब Q, so this is your Q. अब मैं यहाँ पे शेयर कर दें. जी मैं जरूर सॉरी मैं भूल गया था. So this is Q. So this is Q dot insert, कोई डाटा डाल देते हैं. 12. This is 12. मिल गए? नहीं, वो कह रहे थे मेनू नहीं आइडिया. चलो कोई नहीं, खैर है, कर लेंगे बाद. So these are the values that are put into the queue. 1 2 3 4 5 6, and you can see how we can apply. This is Q dot empty. A deleted value is not S, it is Q dot remove. Now execute this whole program and you can see the flow. पहले तो आप देख लें वैल्यू पहले कौन सी इंसर्ट हुई है, जरा बताइएगा पहली कौन सी इंसर्ट हुई है सामने? 12 और लास्ट पर 93. Is there is any query, any ambiguity? सिंपल जी, कोई इसमें No, ऐसा sir. कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जी. स्टैक की इंप्लीमेंटेशन ही की तरह का है, बट दिस इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड क्यू. और भाई इसके अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर कुछ ये चीजें यूं मेंशन की जाएंगी. अब अगर हम चलते हैं इस कोड की तरफ, तो भाई यहाँ पर बेसिकली इसको यूं होना चाहिए था, और ये जनाब आपका जो कंस्ट्रक्टर था इसे आपको कुछ यूं होना चाहिए था. बस देखें वो जावा का कोड है, ये C++ का कोड है, और एम्प्टी का जो फंक्शन है सेम एज इट इज, बट देयर मस्ट बी मेंशन द इन द फॉर्म ऑफ, वहां पे बूलियन लिखा हुआ है, यहाँ पे बूल है. द रेयर इज इक्वल टू फ्रंट, इफ यू कैन सी ये फुल का है, तो रेयर इज इक्वल टू साइज -1, देन इट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. ये तो ठीक हो गया, ये फुल का है, इस फुल वाला, और ये एम्प्टी का है. ठीक है जी, और ये मैंने इसको भी बड़ा कर दिया. सो दिस इज ऐड फंक्शन. The add function, you can also call the add function, insert function, it's up to you. सेम वही चीज, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये था कि इज सी आउट की जगह पर वहां पर system dot out dot print line है, and you can see this is a delete function. और भाई delete function जो से हमारा वो delete लिख लें, remove लिख लें, dq लिख लें. The dq is basically the appropriate word for deleting the value from the queue. So यहाँ तक तो बच्चों बात समझ में आ गई. हम जरा इस पहली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. अच्छा जी, क्यू की जो ऐड हो गया, रिमूव हो गया, डिलीट हो गया, इसकी जो टोटल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली बिग ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यू है जी. याद रखिएगा, आप जितना क्यू के अंदर डाटा डालेंगे अब वो बेसिकली उतनी ही वैल्यू को वो करता है, उतना ही उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है. पहला इशू के बारे में बात करते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर. आप देखें कि सबसे पहले ये फ्रंट था और ये वैल्यूज कुछ उसने डाल दी, उसने रेयर कर दिया.
और वैल्यूज उसे इंसर्ट करता जा रहा है, रेयर आगे जाता जा रहा है और उसने रिमूव करना शुरू कर दी वैल्यूज फ्रॉम द क्यू। अब वैल्यूज को रिमूव करता जा रहा है वो। अब इस तरह है कि अगर आप देखें, अगर कोई यूजर वैल्यू इंसर्ट करना चाहता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज इंसर्ट कर रहा है, पहले उसने वैल्यू को इंसर्ट किया और you can see there is only the two values left for the insertion या spaces left for the insertion। उसने वैल्यूज को रिमूव कर दी, रेयर आपने दो वैल्यूज इंसर्ट कर दी, उसने फ्रंट को निकाल दिया। अब द यूजर वांट टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू इनटू द क्यू, तो क्यू के अंदर स्पेस खत्म हो गई है। अब क्यू के अंदर अगर स्पेस खत्म हो गई है, एक चीज याद रखिएगा, और वो न्यू वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहता है इनटू द क्यू, तो यहाँ पर देयर इज नो मोर स्पेस फॉर द क्यू फॉर द इंसर्शन इनटू द क्यू। ये इसका पहला ड्रॉबैक है। तो इसका पहला सॉल्यूशन क्या है, वो कहता है कि आप फ्रंट को फिक्स कर दें। अब फ्रंट को बच्चों कैसे फिक्स करेंगे? अब फ्रंट को इस तरह फिक्स करेंगे, आपने को वैल्यूज डाली हुई है लाइक 11 12 13, ये मैं क्योंकि इस तरह तो काफी देर लगेगी तो मैंने ऐसे रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूं। एंड द फ्रंट इज देयर। वो कहता है कि आप वैल्यूज को सी आउट कर दें, रिमूव कर दें, शो करवा दें कि द डिलीटेड वैल्यू फ्रॉम द क्यू इज दिस वन, दिखा दें। दिखा दी। दिखाने के बाद वो कहता है कि द होल वैल्यूज पुश डाउन बाय वन एंड देन डिक्रीज द रेयर बाय वन। कैसे? वो इस तरह के, आप जब इस वैल्यूज को रिमूव करेंगे, लाइक वी जस्ट रिमूव दिस वैल्यू फ्रॉम द क्यू, मैं सिर्फ दिखाने के लिए और शो करवा दिया, तो फ्रंट को आगे मत लेके जाएं। द फ्रंट फिक्स्ड बाय जीरो इंडेक्स, फिक्स्ड कर दिया जीरो पर, जीरो कर लें, फ्रंट कर लें, इट्स अप टू यू। अब कहता है कि लूप लगाएं जीरो से लेके, वी नो दैट जीरो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, बट जीरो और फ्रंट एक ही है, तो जीरो बोलो फ्रंट बोलो, देयर इज नथिंग न्यू। तो आप यहां से लेके लेस देन रेयर तक लें और कहें कि एरे ऑफ, जरा देखिएगा, एरे ऑफ आई, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम फ्रंट, या याद रखिएगा फ्रंट या फिर जीरो, इसको असाइन कर दें एरे ऑफ किसके? आई प्लस वन के। और ये लूप आई प्लस वन, तो इसका मतलब ये है कि दिस वैल्यू इज शिफ्टेड फ्रॉम हेयर एंड सेम एज इट इज, दिस वैल्यू इज हेयर एंड हेयर एंड हेयर एंड सेम एज इट इज हेयर। अब नो डाउट है कि इधर 16 पड़ा रहेगा, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होगा, बट आफ्टर दिस वन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेयर बाय वन। तो अब अगली बार जब रेयर वैल्यू डालेगा तो इस जगह पे डालेगा और ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो कहता है कि यू हैव टू फिक्स द फ्रंट एंड। मेरी बात को लिसन करिएगा। Whenever removing is called, all the element in the start of the queue, you have to do this thing. X is equal to q of 0, q of 0 या q of front, it's same, मैंने कहा ना। And then the for I, अच्छा हुआ उसने I ही start किया, नहीं तो ये मेरे वाला सेम ही कोड बन गया। And I started from 0 and I is less than rear and I plus plus, and you can see the in q of I, देखें q of I हो या array of I हो या item of I हो, it doesn't mean, हमें सिर्फ ये है कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्या है। सो the q of I is equal to q of I plus 1, so it decrease the value by 1, same as it is at removing the value from the क्या जी, कोई क्वेश्चन मार्क बताना चाहेगा? Same as it is as we have already done in our previous topic. The topic name is Stack. no, we did not study this type of concept in stack. We already did this thing in Insertion store. So no, it's not insertion sort, वासिफ। मामा बच्चे बताइएगा जरा, सेम यही अप्रोच की है जो अभी मैं ये सामने कोड लिखा हुआ है। मामा Yes, sir. किस में किया था ये काम? सेम कोड करवाया था, प्रॉपर कोड करवाया था।
सर नहीं याद आ रहा। The deleting value from the array at any index. याद आया किसी को जी? जिसमें एलिमेंट्स को माइनस माइनस करते थे, बस वहां पर हम एलिमेंट से लूप लगाते थे, यहाँ पर हमने 0 फिक्स कर दिया। रिवाइज करें जी, मुश्किल हो जाएगा, विशाख एमसीक्यूज बेसिक पेपर क्यों ना हुआ, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, सो ये तो था जी इसका पहला सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपके सामने इसका ड्राई रन करके बता दिया। ये वाला ऑलरेडी ये हमने काम किया था, डिलीशन द वैल्यू फ्रॉम द array at n index या डिलीटिंग वैल्यू फ्रॉम द array at n index, ये ऑलरेडी हमने काम किया था, जिसमें हम किसी एक सर्चिंग टेक्निक से एलिमेंट तलाश कर लेते थे, उसका इंडेक्स आ जाता था, वो सर्चिंग टेक्निक हमें इंडेक्स दे देती थी या तो माइनस या इंडेक्स पॉजिटिव में। अगर माइनस आता था तो क्लियर कट बात है, वो कह देता था जनाब ये तो मिला नहीं है, अगर आपको कुछ याद हो थोड़ा सा। और उसके बाद फिर हम उस इंडेक्स से लूप लगाते थे और टिल टू एलिमेंट्स तक, लेस देन एलिमेंट्स तक, और फिर एंड पे एलिमेंट्स को माइनस माइनस कर देते थे। मुझे देख लें अभी भी कोड जुबानी याद है वो वाला, फिंगर टिप्स पे। द सेकंड सॉल्यूशन इज बेसिकली वो कहता है कि यार इट टेक अगेन टू मच टाइम। पहले का मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट अगेन it take too much time, the time complexity of the previous whole system is too much higher. कहता then what can we do, कहता फिर इसका हल यही है कि आप कोई और टेक्निक अप्लाई कर लें। कहता जी which टेक्निक, कहता दिस इज कॉल्ड सर्कुलर क्यू। कहता सर्कुलर क्यू को भाई अप्लाई करो जी, सर्कुलर क्यू को अप्लाई करो जी। अब okay, this one is I think so this is an image। कहता जी सर्कुलर क्यू को अप्लाई कर लो। अगर कहता है भाई सर्कुलर क्यू को अप्लाई करना है, तो कहता है भाई ये तो अच्छा खासा ट्रिकी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपके पास कोई बफर शफर भी होगा और कोई इस तरह की चीजें भी होंगी। दैट्स इट्स ओके जी। कॉन्सेप्ट क्या है जी? कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने लास्ट इंडेक्स का, इधर ये गौर से मेरे साथ रहिएगा, अब इसको समझाने के लिए मुझे, मैं पीछे वही कर रहा था कि कुछ तजर्बे करने पड़ेंगे मुझे। अब मैं पेंट फेर लेता हूँ, मेरे संग बनेगा एरो। कहता है कि यू मस्ट हैव टू डू दिस थिंग। अगर सादा सी अल्फाज में बात करें बच्चों, तो आपका कुछ, सॉरी फॉर वेरी डर्टी ड्राइंग, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है जी। सो दिस इज 1 2 3 and 4 if your size is 5 not a good अच्छी ड्राइंग नहीं है जी। ओके, सो वापस आते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ ये है सर्कुलर क्यू का। अब सर्कुलर क्यू के बारे में कुछ चीजें हैं जो आप पहले से समझ लें तो वो मेरे ख्याल से बेटर फॉर मी। अब ये बहुत बड़ा क्यू है और मैं चाहता था मैं इसको कहीं छोटा करके यूज करूं, तो मैं, और मुझे लालच भी है इसको छोटा यूज करने के बारे में, तो मैं एक नई स्लाइड डाल लेता हूं और मैं आपको यहीं पे कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से मेरी क्लास को समझ आ जाए। बस मैं यही चाहता हूं, मेरी क्लास को समझ आ जाए। ओके, दैट्स रियली कूल। और साइज को इतने बड़े साइज के बजाय अगर हम 5 साइज कर लें तो आई थिंक सो बेटर फॉर अस। दिस इज 0, like this is 0, this is 0 and the 1 2 नहीं,
and this index is like 1, and this index is 2, and this index is like 3, like, and this index is 4. बाकियों को रिमूव कर देते हैं। आपको समझना चाहिए, याद रखिएगा ये ट्रिकी काम होने वाला है, तो मेरे साथ रहिएगा क्लास प्लीज, ठीक है। आप लोगों के लिए सारी तरद्दत कर रहा हूँ, मेरी क्लास को समझ आना ज्यादा जरूरी है रेदर देन बात को दाएं बाएं से लेके चलें। ओके जी, so you can see this is your cube with size 5. Sorry. Okay, बच्चों हमारे पास this is 4 and also size -1. मैं इसको ठीक कर देता हूँ, डोंट वरी। 4 एंड साइज -1, बात एक ही है। अब मेरे साथ रहिएगा प्लीज, ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके कि बेसिकली मैं बात कर क्या रहा हूं। अब जरा गौर से देखिए बच्चों, मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ चले कहते हैं तो वो भी कर देते हैं। इसका कोड भी हमने ये लिखा हुआ है, तो इस स्लाइड को यहाँ से कट करते हैं और कोड के पास लेके जाते हैं ताकि आप कोड को समझ सकें रेदर देन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम क्यू के बारे में। सेम एज इट इज हमारे पास वही क्यू की क्लास है, मैं क्यू की क्लास को कहीं मूव नहीं कर रहा। कोड को साथ साथ समझिएगा, मैं कोड यहीं पे कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा स्विचिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ साथ सर्कुलर क्यू, और जहां बच्चों समझ ना आए प्लीज एक्नॉलेज, एट द स्पॉट एक्नॉलेज करना है आपने। कोड को यहीं लिखते जाते हैं साथ साथ, और फिर वहां पुट करके ड्राई रन वहां करेंगे। सो बच्चों हमारे पास दिस वन इज अ क्यू, there is a 2 and exactly, and now I am copying this code into the slide. So this is your code. The class is the CQ, not a Q. This is CQ, the circular Q. Why I am doing this one? कोई बताएगा जी कि सर्कुलर क्यों यूज किया जा रहा है? कोई बताए प्लीज, आंसर दे जी कोई भी। क्लास BSCS रेगुलर है, कोई बताए जी सर्कुलर क्यों यूज कर रहे हैं? सर ताकि ये कम टाइम ले। नहीं, एक प्रॉब्लम थी जो मैंने अभी, मेरी वीडियो दोबारा देखिएगा, मैंने बताया था कि आपका अगर एरे बोल रहा हूं, आपका जो क्यू है वो जिस मेमोरी को ऑक्युपाइड कर लेता है व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग द क्यू बाय यूजिंग एरे, तो जिस मेमोरी को वो ऑक्युपाइड कर लेता है वो मेमोरी दोबारा रीयूजेबल नहीं है। और आपका क्यू खाली होने के बावजूद यूज नहीं किया जा सकता। मुझे सारा वापस जाना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह बिल्कुल सुमुन बुकमुन रहेंगे तो कभी भी नहीं आप कर पाएंगे। और इस बार छोड़ दीजिएगा कि अगर आपको लगे कि आप कि कोई सीनियर्स आपकी हेल्प कर पाएंगे। इस बार ऑब्जेक्टिव इसका है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, और जिनकी अपनी डेटा स्ट्रक्चर क्लियर नहीं वो आपकी क्या डेटा स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे। ओके, आपके पास ये ब्लैंक स्पेसेस एंड हियर, और यू कैन सी दिस इज योर फील्ड एरे, और ये एम्प्टी एंड द यूजर वांट टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू इनटू द क्यू, और नहीं डाल सकता बिकॉज योर क्यू इज फुल। रेयर यहां पहुंच गया है, तो उसका पहला सोल्यूशन था कि आप इसको 1 डाउन करते रहें। ये देखें आपके सामने ही तो यार ये सब कुछ किया था मैंने। ये इसका पहला सोल्यूशन था कि 1 डाउन करते रहेंगे तो ये खाली होगी है। अब दोबारा डालेंगे वैल्यू ऊपर चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक और वैल्यू डालते हैं लाइक दिस वन, और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 17। और पहले ये होता था कि फ्रंट ऊपर चला जाता था यहाँ, तो पीछे जगह नहीं बचती थी। अगर वो उसने 5 वैल्यूज डालनी है तो ये सारी रिमूव हो गई थी, तो वो कहता है जी सिर्फ एक ही स्पेस है। जबकि यहाँ पर ये था कि अगर वो कहता है कि 5 डालनी है और 5 निकालनी है, तो 1 2 3 4 और लाइक 4 निकालनी है, तो भाई रेयर ये 4 निकालने के बाद रेयर डाउन होके नीचे आ जाता था। वो कहता है 5 डालनी है, तो कहता है ना जगह डालो। वो पहले नहीं थी ये स्पेस। क्लियर होगी बात? और सर्कुलर क्यू इसी का तो तोड़ है कि पहला सॉल्यूशन ये था कि हम उसको फिक्स कर देते हैं। दूसरा सॉल्यूशन सर्कुलर क्यू है जी। सर्कुलर क्यू में
का कोड आपके सामने तो कर रहा हूं बच्चों, तो साथ साथ जरा काइंडली थोड़ा सा लेंगे तो मजा आएगा चीजों को समझने में, और इसको मैं आगे ले जाऊंगा इस चीज को भी। वो कहता है कि सर्कुलर क्यू द प्राइवेट इंट अरे ऑफ साइज और फ्रंट और रेयर और क्यू फ्रंट और रेयर, बात तो ठीक है। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो दिस इज योर फ्रंट और दिस इज योर रेयर। समझाने के लिए सिर्फ मैं आपके साथ चल रहा हूं, आपको पता आना चाहिए, कुछ गिद्दड़ सिंह की जुबानी नहीं मार रही। अब इसको रखेंगे कहां जी, जहां रख दूंगा समझ लो वो उसके पास है। और भाई इसको रखेंगे कहां? आप कहते हैं सर दोनों को इधर, इसको रेयर को -1 कर देते हैं, चले मान लिया, और फ्रंट को 0 कर देते हैं, तो क्या ये इससे बड़ा है? चलो इस मामले में तो बड़ा हो गया। जरा गौर से सुनिएगा जरा, ठीक है जी, फ्रंट बड़ा है, ये वैल्यूज ये यहाँ पे थी जी, ये जरा गौर से देखिएगा, ये वैल्यू डाल 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 के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वैल्यू डली हुई है, यहाँ फ्रंट ने वैल्यू निकाली आगे चला गया, वैल्यू निकाली आगे चला गया। अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा मेरे शहजादों, ये जगह खाली हो गई है, यहाँ वैल्यू डली हुई है, यहाँ डली हुई है, रेयर ने वैल्यू डाली आगे चला गया, रेयर ने वैल्यू डाली यहाँ आ गया, कैसे आया वो बात की बातें बाद में देखेंगे। अब क्या एम्प्टी है? उसने कहा फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर, हाँ एम्प्टी है। और कहाँ एम्प्टी है भाई? यहाँ पे भी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू है, तो ये खाली कैसे हुआ? ये तो कोई खाली ना हुआ। तो ये चेक जो आप लोगों ने रखा हुआ है ना जी कि ये बड़ा है छोटा है, ये तो कभी भी साइकिल के टायर की तरह नहीं एक्सेप्ट हो सकता। क्यों? कभी रेयर छोटी वैल्यू पे होगा तो फ्रंट बड़ी वाली इंडेक्स वाली वैल्यू पे होगा, और कभी फ्रंट छोटी वैल्यू पर होगा, सॉरी कभी फ्रंट बड़ी वाली वैल्यू पर होगा और रेयर छोटी वाली वैल्यू पर होगा। तो ये जो बड़ा छोटे वाला कॉन्सेप्ट है ये तो अप्लाई नहीं होगा। तो कहता है, तो फिर कहता है एम्प्टी के लिए एक ही चेक लगेगा, और वो होगा कि अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं, अगर ये दोनों के दोनों भाई इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है एम्प्टी में कि द क्यू इज एम्प्टी। तो कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं और सबसे पहले एम्प्टी के फंक्शन को मॉडिफाइड करते हैं। इफ the rear and the queue equal to, yani front and the rear is equal to, both are equal, then we can say that this is empty function या q is empty। यहाँ तक भाई किसी को ना समझ आई है तो वो काइंडली वो बोल सकता है कि सर मुझे नहीं समझ आई, मुझे बताएं, मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा गाइड करें जी। क्लास क्लियर? यस सर। ओके, आप लोगों के लिए सारी डिटेल बता रहा हूँ जी, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई बात ऐसे रैंडम नहीं हो रही, चीजें ऑथेंटिक बात हो रही हैं। यहाँ पे पास करते हैं वीडियो को और दोबारा से सेशन स्टार्ट करते हैं 5 मिनट का, ताकि इंसर्ट और रिमूव दोनों के बारे में बात की जा सके।